स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 28 पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। Subsection 1 Whoever having been convicted of an offence under subsection 1 of section 27 is convicted for a subsequent offence under that subsection shall be punishable with imprisonment for life or with imprisonment which shall not be less than 10 years and with fine which may extend it to 100 million rupees but which shall not be less than 50 million rupees. सेक्शन 28 में सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, जिसकी पेनल्टीज कुछ इस तरह से है कि अगर एक पर्सन पहले से कंट्रावेंशन कर चुका है, कोई ऑफेंस कन्विक्ट कर चुका है सेक्शन 27 में, अगर वो दोबारा अगर उसको कन्विक्ट करता है देन उसकी क्या सजा होगी। तो सब सेक्शन 1 में ये कहा गया कि कोई पर्सन अगर सेक्शन 27 के सब सेक्शन के अंडर जो ऑफेंस है वो दोबारा कन्विक्ट करता है तो उस केस में जो उसकी सजा होगी वो लाइफ टाइम के जो इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद, या कम से कम 10 साल उसको सजा होगी। और फाइन जो होगा मैक्सिमम 100 मिलियन और मिनिमम 50 मिलियन होगा। Subsection 2 Whoever having been convicted of an offence under subsection 2 of section 27 is convicted for a subsequent offence under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may extend it to 10 years but which shall not be less than 2 years, and with fine which may extend to 1.5 million rupees but which shall not be less than 300,000 rupees. जो पर्सन सेक्शन 27 के सब सेक्शन 2 के अंडर पहले कन्विक्ट हो चुका है और दोबारा वो ऑफेंस करे, उस केस में उसकी जो सजा होगी मैक्सिमम 10 साल और मिनिमम 2 साल होगी। और जो फाइन होगा उसको मैक्सिमम 1.5 मिलियन रुपीज और जो मिनिमम फाइन होगा उस पे वो 300,000 रुपीज होगा। Subsection 2A Whoever having been convicted of an offence under subsection 3A, subsection 3B, subsection 3C, and subsection 3D of section 27 is convicted for a subsequent offence under any of those subsections shall, if the drug is not recalled as prescribed by the provisional government, be punishable with imprisonment for a term which shall extend to 7 years, but which shall not be less than 2 years, and with fine which may extend to 1.5 million rupees but which shall not be less than 5 times the value of the drug taken into custody. जो पर्सन सेक्शन 27 के 3A से लेकर 3D तक ऑफेंस रिपीट करे, उस कंडीशन में क्या है कि अगर वो ड्रग को रिकॉल नहीं करता, जैसे उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, उस केस में उसकी जो सजा होगी मैक्सिमम 7 साल होगी और मिनिमम 2 साल। और जो फाइन होगा मैक्सिमम 1.5 मिलियन रुपीज होगा और मिनिमम जो है वो 5 गुना ड्रग की वैल्यू के बराबर हो। Subsection 3 Whoever having been convicted of an offence under subsection 4 of section 27 is convicted for a subsequent offence under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years but which shall not be less than 30 days, and with fine which may extend to 1 million rupees but which shall not be less than 300,000 rupees. सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो पर्सन सेक्शन 27(4) का ऑफेंस दोबारा कन्विक्ट करे तो उस केस में उसकी जो सजा होगी मैक्सिमम 7 साल होगी और मिनिमम 30 डेज होगी। और जो फाइन होगा मैक्सिमम 1 मिलियन रुपीज होगा और मिनिमम फाइन जो है 300,000 रुपीज होगा। Section 28A Recall of drugs. Person charged with the commission of an offence under subsection 3 of section 28 shall be deemed to have committed no offence when the drug which shall subject of that offence has not caused any death or physical ability is recalled as prescribed by the provincial government. सेक्शन 28 में रिकॉल ऑफ द ड्रग है के बारे में बताया गया है कि अगर ड्रग से डेथ या फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हुई और ड्रग प्रॉपरली रिकॉल कर दी गई है मार्केट से, जैसे उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी, तो दोबारा तो बंदा गिल्टी नहीं माना जाएगा। मतलब उस पर कोई ऑफेंस या कोई भी जो पनिशमेंट है कोई भी किसी भी कंडीशन की, तो उस पर वो अप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 29 फोर फीचर का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब्त कर लेना।
किसी चीज को जब्त करना, कोई ड्रग है, कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, कोई व्हीकल है, कोई चीज है, जो किसी भी ऑफेंस के केस में गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको जब्त कर लेती है। Subsection 1. Where any person has been convicted under this Act for contravening any such provision of this Act or any rule as may be prescribed in this behalf, the drug court may order that the stock of the drug or substance by means of or in relation to which the offence was committed or anything of similar nature belonging to or in the possession of the accused or found with such drug or substance, and if such contravention is punishable under subsection 1 of section 27, an implement used in manufacture or sale of such drug, and any receptacle, packages, or covering in which such drug is contained, and the animal, vehicles, vessels, or other conveyances used in carrying such drug be forfeited to the federal government, or as the case may be, the provincial government, and upon such order being made, such drug, substance, implements, receptacles, packages, or covering animal, vehicles, vessels, or conveyances may be disposed of as that government may direct। जैसे फोर्थ फीचर का मतलब है जब्त करना, तो इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कोई पर्सन अगर इस एक्ट के अंडर कंट्रावेंशन करता है, या कोई ऐसी इस एक्ट के या किसी रूल की प्रोविजन में कंट्रावेंशन करता है, उसको सही तरह से मेक श्योर नहीं करता, उसमें कुछ मिसकंडक्ट करता है, तो उस केस में ड्रग कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि कोई ड्रग है या उसकी सब्सटेंस है या उससे रिलेटेड कोई भी चीज है जो उसमें कंट्रावेंशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो क्या करती है, जो पर्सन उसको बिलोंगिंग करता है उसकी पोजीशन में है और उस पर ये इल्जाम लगाया गया है कंट्रावेंशन का, और वो पर्सन उस सेक्शन 27 के सब सेक्शन 1 के अंडर भी पनिशेबल है, तो उस केस में क्या है कि उसके जो इम्प्लीमेंट यूज किए गए थे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, उससे रिलेटेड उसके पैकेजेस, कवरिंग, या कोई एनिमल या कोई व्हीकल या वेसल जो उसकी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे, जो भी उसके साथ चीजें कंपनी करती थी, वो सारी चीजें क्या की जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी टू द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको डायरेक्शन दी जाएंगी। तो जिसमें जो जब्त की जाएंगी उनमें चीजों में इन्वॉल्व है ड्रग, उसकी इम्प्लीमेंट्स, रिसेप्टेकल, उसकी पैकेजिंग, कवरिंग, एनिमल्स, व्हीकल, वेसल्स, कन्वीनियंस, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट होगी और उसको क्या करेगी, वो जब्त कर लेगी। Subsection 2. Without prejudice to the provisions of the subsection 1, where the drug court is satisfied on the application of an inspector or otherwise, and after such inquiry as may be necessary, that the drug contravenes the provision of this act, the drug court may order that such drug be forfeited to the federal government, or as the case may be, the provincial government, and upon such order being made, such drug may be destroyed or otherwise disposed of as that government may direct। सबसेक्शन 2 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि सबसेक्शन 1 की प्रोविजन को इफेक्ट किए बगैर अगर ड्रग कोर्ट को लगता है इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे या किसी और तरीके से कि ड्रग की में कंट्रावेंशन हो रही है, कोई वायलेशन हो रही है इस एक्ट के अंडर, तो वो ड्रग क्या की जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविजनल गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी तो वो उनको फोरफिट की दी जाएगी, या ये ड्रग को फर्दर डिस्ट्रॉय किया जाए या डिस्पोज ऑफ, जो उस गवर्नमेंट उस टाइम पे चाहेगी तो वो उसके साथ किया जाएगा। Subsection 3. An inspector shall release any drug or article seized by him under this Act when he is satisfied that all the provision of this Act and the rules with respect thereto have been complied with। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जो एक्ट और रूल्स की प्रोविजन है वो फॉलो की जा रही हैं, तो उस केस में क्या करेगा, वो ड्रग जो जब्त की गई थी उसको वो रिलीज कर सकता है।